Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss one more physical division, that is Indian islands, or we can simply say as islands. When we see the peninsular part of India, this is the peninsular part. This is peninsular part, the southern, or we can say the Deccan Plateau. In the eastern side, we have a sea called as Bay of Bengal, and on the eastern side, we on the western side, we have a sea called as Arabian Sea. The islands in the Bay of Bengal are the Andaman and Nicobar Islands, while as the islands that are in the Arabian Sea here are the Lakshadweep Islands. When we see these islands, it is not a single patch like this, like we have a single patch island. No, these are small, tiny islands. Some are very small, just like scattered, and they are separated from each other by small distances. Some of these islands are a bit bigger, so and are separated from each other by a wide distance. ठीक है, because of this scattered, these Lakshadweep islands are also scattered at the knee. So when we calculate the number of these islands, जब हम देखते हैं ये कितने islands हैं, there are about 615 islands. So the number of islands in India is 615. Out of 615, the Andaman and Nicobar Islands are 572, while as the Lakshadweep Islands are 43. So the total number of islands of India are 615, while as the Andaman and Nicobar are 572 and the Lakshadweep are 43. ठीक है, अब पहले हम इनकी बात करते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की. The northern side of the island, this group of island, on the northern side, these islands are called as Andaman Islands, while as on the southern side, on this side, these islands are called as Nicobar. The islands that are on towards the north are called as Andaman Islands, sorry, while as the islands that are on the southern side are the Nicobar Islands. The Andaman Islands and the Nicobar Islands are separated by a channel. This is actually a 10-degree latitude. This channel is called as 10-degree channel. The channel that separates the Andaman and the Nicobar Islands. The Andaman and the Nicobar Islands. The channel that separates the Andaman and the Nicobar Islands is a 10-degree channel. When we see the topography, when we see the origin of these, regarding the origin, when we see the origin of these islands, these are formed by the volcanic eruptions. Volcanic eruptions की वजह से ये बन गए हैं. So we can call these islands as volcanic islands. इनको हम volcanic islands भी कह सकते हैं. Volcanic eruptions कैसे होते हैं? टेक्टोनिक मोमेंट की वजह से होते हैं. So we can also call these Andaman and Nicobar Islands as tectonic islands, or we can say volcanic islands. ठीक है, जब हम इनका क्लाइमेट देखते हैं, सी on the middle of the India there passes the Tropic of Cancer. On the below this Tropic of Cancer, on the southern part of this Tropic of Cancer, we have a tropical part, and on the northern side we have a temperate part. So this part, not this tropical part, when you see these islands, they fall in the tropical part. So the climate of these islands is tropical. We have tropical islands. We can call these islands a tropical, and they have the climate tropical islands, or we can call they have a climate that is tropical type of climate. ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ से दिस इज कोस्टल लाइन, दीज आर आइलैंड्स. यहाँ से यहाँ तक इनकी डिस्टेंस कितनी है? देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर. द डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल लाइन अप टू दीज आइलैंड्स इज 2000 किलोमीटर. ठीक है, तो फिर से मैं क्लाइमेट पे आता हूँ. जब मैंने बात की यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ से बारिशें भी अच्छी खासी होती हैं मानसून की वजह से, तो जो फॉरेस्ट्स इसमें है थिक पाए जाते हैं. वी हैव ए थिक फॉरेस्ट कवर इन दीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है,
और जब हम बात करते हैं ये जो अंडमान और निकोबार, इनको क्लासिफाई किया गया, द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड इज दिस इज नॉर्थ अंडमान, और जो इसके नीचे है इट इज मिडल अंडमान, और जो इसके नीचे है इट इज साउथ अंडमान। इस साउथ अंडमान, यहाँ पे देखिए, इस साउथ अंडमान पे ही पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो इस साउथ अंडमान और इसके नीचे है लिटिल अंडमान, छोटा सा लिटिल अंडमान। इस लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के दरमियान एक पास है, देयर इज ए पास। मैंने पहले बोला दीज आर टिनी आइलैंड्स, किसी किसी आइलैंड में छोटी डिस्टेंस है, सेपरेशन है, किसी में ज्यादा है। तो यहाँ लिटिल और साउथ अंडमान में थोड़ी ज्यादा गैप है। सो दिस पास इज कॉल्ड एज दनकन पास। यहाँ पे मैंने लिखा, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज दनकन पास। द गैप बिटवीन द साउथ अंडमान, द पास बिटवीन द साउथ अंडमान एंड द लिटिल अंडमान इज द दनकन पास, इज द दनकन पास। अब आप यहाँ आ जाइए, मैंने कहा ये ऊपर वाले अंडमान है, ऊपर वाले आइलैंड जो है इनको हम अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। जो चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग करती हैं, इस चैनल को हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ऊंचे वाले को क्या कहते हैं? अंडमान। नीचे वाले को निकोबार। अब हम निकोबार पे आते हैं। देखो, जो सबसे ऊपर है उसको कार निकोबार कहते हैं, छोड़ो कार निकोबार, लेकिन जो लास्ट है इसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। इसी ग्रेट निकोबार पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, दैट इज कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट और पैगमेलियन पॉइंट। वी कैन कॉल दिस पॉइंट एज पैगमेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर फिर से देखिए, यहां से भी एक स्ट्रेट है, ऊपर से नॉर्दर्न, ऊपर से एक स्ट्रेट है, इट इज कॉल्ड एज कोको स्ट्रेट। इट इज कॉल्ड एज कोको, क्योंकि ऊपर जो आइलैंड्स है ये कोको आइलैंड्स है, मगर ये म्यांमार कंट्री के आइलैंड्स है। तो कोको आइलैंड्स के नीचे एक स्ट्रेट है, उसको कोको स्ट्रेट कहते हैं। तो कोको स्ट्रेट से ये आइलैंड्स एक्सटेंड होते हैं कहाँ तक? इंदिरा पॉइंट तक ये वाले आइलैंड्स एक्सटेंड होते हैं। तो दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आया समझ में? इन सब दे, बट ये ऐसे है, ऐसे कन्वेक्स, लेकिन जो ये कन्वेक्सिटी है इट इज टूवर्ड्स द वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ अंडमान, इसके नीचे मिडल अंडमान, इसके नीचे साउथ अंडमान, फिर तो लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के दरमियान एक पास है कॉल्ड दनकन पास। इसके लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है, दैट इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे ही पैगमेलियन पॉइंट है और वी कैन से द पार्सन्स पॉइंट। मैंने कहा आपको इसमें जो क्लाइमेट है दैट इज ट्रॉपिकल। देखो, अगर आप इस स्लाइड पे आ जाइए, अगर हम पीक्स की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी पीक है दैट इज सैडल पीक। सैडल पीक ये ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट अंडमान पे है, ठीक है। सैडल पीक, इसके नीचे जो मिडल अंडमान है इस पे जो सबसे बड़ी पीक है दैट इज माउंट दियावोलो। माउंट दियावोलो इज द हाइस्ट पीक इन मिडल अंडमान, और माउंट कोयोब is the highest peak in the South Andaman, and Mount Thular is the highest, yeah, we can say tallest mountain in Great Nicobar. लेकिन इन सबसे ज्यादा इसमें कौन से हाईएस्ट पीक है? दैट इज सैडल पीक। और वी कैन से द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार इज सैडल पीक। लेकिन ये सैडल पीक कहाँ पे है? यहाँ सैडल पीक नॉर्दर्न अंडमान में है। वो द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार इज सैडल पीक। हम अब बात करते हैं इसकी वेजिटेशन के बारे में, क्या क्रॉप्स हैं इसमें पाए जाते हैं। देखो, अगर आप क्रॉप्स देखोगे इसमें आपको राइस मेजर क्रॉप मिलेगा। द सबसिस्ट ऑन दिस पीपुल सर्वाइव। तो सबसिस्टेंस के लिए यह राइस जो इनका मेजर क्रॉप है। लेकिन कोकोनट भी वहां पाया जाता है, बट इज दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ मनी, तो इसको कैश क्रॉप कहते हैं। वहां पे आपको पाइन एप्पल, ट्रॉपिकल फ्रूट मिलेगा। फ्रूट्स क्या क्या मिलेंगे? बनाना मिलेगा, पाइन एप्पल मिलेगा, पपाया मिलेगा और मैंगो मिलेगा। दीज आर द क्रॉप्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। दीज याद रखिए, राइस भी है, कोकोनट भी है, बनाना भी है, पाइन एप्पल भी है, पपाया भी है और मैंगोज भी है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक एनिमल देखोगे दैट इज गैट रॉबर क्रेब। गैट रॉबर क्रेब इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड रेयरेस्ट क्रेब। ये सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रेब है। क्रेब इज ए
इज एन एनिमल, इनवर्टिब्रेट एनिमल। तो सबसे ज्यादा बड़ा कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार। ये क्या करता है? ये इन कोकोनट के ट्यूब के ऊपर चढ़ता है और कोकोनट के को तोड़ता है। उनके इतना सॉरी इतना पावरफुल होता है, उनके शल को तोड़ के कोकोनट को खाता है। ठीक है, अब आप देखिए जो ये अंडमान एंड निकोबार है, इनमें आपको मोस्टली जो पीपल रहते हैं वो ट्राइबल पीपल है। आप इनमें जो इनमें इन 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 जो ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, इनमें जो आप देखोगे जो वहाँ पीपल रहते हैं वो मोस्टली ट्राइबल टाइप ऑफ पीपल है। लेकिन इसमें आम जो खास ट्राइब्स जो देखोगे, आपको ऑन्जस मिलेंगे। ओ मैं लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज ONGES, ऑन्जस। आपको जरावाज मिलेंगे, ठीक है। आपको सेंटिनलीज मिलेंगे। These are some of the tribes that are on these Andaman and Nicobar। लेकिन कुछ मैंने आपको कहा these are about 651 आइलैंड्स, ठीक है ना। मैंने कहा टोटल ये 651 आइलैंड्स है। इसमें 15 सॉरी about they are about sorry there are the total of about 615 आइलैंड्स। इनमें से अंडमान एंड निकोबार 572। लेकिन इन 572 में कुछ ही आइलैंड्स दैट आर अबाउट, बहुत कम आइलैंड्स इनहेबिटेड है जिन पे लोग रहते हैं। बाकी 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 आइलैंड्स पे थिकली फॉरेस्टेड है, उन पे लोग नहीं रहते हैं। ऑलमोस्ट देयर आर ओनली 38 आइलैंड्स आउट ऑफ 572 आइलैंड्स विच आर इनहिबिटेड, जिन पे लोग रहते हैं। ठीक है ना। तो क्रॉप्स भी मैंने बोला, इनका ओरिजिन वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। ठीक है, इनकी पीक्स भी बोली। सबसे बड़ी पीक इनमें जो है दैट इज सैडल पीक। मैंने इन बाकी पीक्स के बारे में भी लिखा है, मॉन्ट दियाल वोलो, मॉन्ट कोयोब, मॉन्ट थुलर। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यही याद आ जाएगा, आपको यही याद रखना है, एग्जाम में भी अगर पूछा जाएगा द हाईएस्ट पीक इज सैडल पीक। लेकिन ये आ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर तो है कैपिटल, लेकिन किस अंडमान में है? तो यही ग्रेट इंदिरा पॉइंट तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन कहाँ पे है, किस आइलैंड पे है? ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द अंडमान एंड निकोबार। अब हम इस तरफ आते हैं, द आइलैंड्स ऑन द अरेबियन सी और कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स। जब हम इनकी ओरिजिन की बात करते हैं, ये वॉल्केनिक एरप्शन से नहीं बने हैं। दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कोरल प्रोसेस। मैंने कहा कोरल इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा। तो वहां से इन सिलेंट्रेटा वो एक अपना स्केलेटन सिक्रीट करते हैं जिसको कोरल कहते हैं। वही डिपॉजिट करते करते ये आइलैंड्स बन गए। सो दैट इज व्हाई दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड एज कोरल आइलैंड्स। दे आर ऑन द किस साइड में है? दे आर ऑन द अरबी वेस्टर्न साइड फॉलिंग इन द अरेबियन सी। लेकिन अगर आप इनकी कैपिटल देखोगे, देखो इनकी कैपिटल दिस इज करावती। करावती इज द कैपिटल, ये मैंने लिखा है, करावती इज द कैपिटल। कौन सी कैपिटल है? लक्षद्वीप की कैपिटल है। किस आइलैंड पे है? अगाती, AGATTI, AGATTI। अगैती इज ए आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ऑन विच द कैपिटल ऑफ आइलैंड इज प्रेजेंट, दैट इज करावती इज द आइलैंड। और सबसे ज्यादा देखो, मैंने बोला ये जो आइलैंड्स है छोटे छोटे आइलैंड्स है, इनमें सबसे ज्यादा बड़ा जो आइलैंड है दैट इज एंड्रोट, ANDROTT, ANDROTT। एंड्रोट इज द बिगेस्ट आइलैंड among the islands of the लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा बड़ा आइलैंड कौन है? एंड्रोट। इसके बाद कौन है? इसके पहले फर्स्ट नंबर पे ये आता है और सेकंड नंबर पे मिनिकॉय आता है। और ये जो मालदीव्स है ये कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। और मालदीव्स और इस मिनिकॉय के दरमियान एक चैनल गुजरती है, इसको हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। इस मिनिकॉय और अदर्स आइलैंड्स, अदर लक्षद्वीप आइलैंड्स के दरमियान जो चैनल चलती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नॉट 10 डिग्री चैनल, sorry, this is 9 degree channel. So the island, the channel that separates Minicoy Lakshadweep island from other Lakshadweep islands is a 9 degree channel। याद रखिए, फिर से मैं बोलता हूँ, the channel that separates Maldives from Minicoy is 8 degree channel, and the channel that separates Minicoy from other Lakshadweep islands,
दैट इज 9 डिग्री चैनल। और सबसे बड़ा लक्षद्वीप आइलैंड में से कौन सा बड़ा है, दैट इज एंड्रॉट, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे कौन है, दैट इज मिनिकॉय। तो इसकी कैपिटल किस पे है, अगाती, अगाती, अगाती पे इसकी कैपिटल है, ठीक लिखना, ठीक है। लेकिन एक और भी एक लाइन है, 11 डिग्री चैनल है ये। अगर 11 डिग्री चैनल है तो इससे इनको 11 डिग्री चैनल इन इन लक्षद्वीप आइलैंड्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो 11 डिग्री के नॉर्थ में आइलैंड्स आते हैं इनको कहते हैं अमन देवी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो, इनको कहते हैं अमन देवी। जो जो दिस 11 डिग्री के नॉर्थ में आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड, इनको अमन देवी कहते हैं। जो 11 डिग्री के नीचे आइलैंड्स हैं इनको हम कैनोरी आइलैंड्स कहते हैं, CANNORE, कैनोरी आइलैंड्स, उनको हम कैनोरी, अमन देवी, कैनोर आइलैंड्स, ठीक है। दिस इज अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड्स। लेकिन अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड्स में देखोगे कि वहां पे क्या मतलब कोकोनट इज द ऑनर, इसमें कोकोनट ही कल्टीवेट, कोकोनट इसमें भी कल्टीवेट किया जाता है, किसमें, लक्षद्वीप में। मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखो, कोकोनट सबसे ज्यादा मेजर क्रॉप है, पल्सेस और वेजिटेबल्स भी ग्रो होते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज की बात करते हो तो इसमें मलयालम वगैरह लैंग्वेज पाई जाती हैं, ठीक है ना। दिस वाज ऑल अबाउट द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। थैंक यू वेरी मच।